Hello students. Final account of partnership firm स्टैंडर्ड 12 इलस्ट्रेशन नंबर 4। आगे 3 वीडियो में हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3। अगर अभी अभी आपका मिस आउट हुआ है तो फिर से यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो सारे वीडियो वीडियो नंबर 1, 2, 3। नाउ आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। Following is the trial balance of partnership firm of Ganga and Jamna as on 31st 3 2017. Trial balance of Ganga and Jamna is given and adjustment is given. One by one adjustments. First, value of closing stock, interest on capital, bonus is given to the partners, bad debt reserve and discount reserve on debtors. तो debtors पे दो adjustment है. Provide building depreciation on building and machinery. तो बिल्डिंग पे टिक मार्क एंड मशीनरी पे टिक मार्क कर देना. परचेज ₹4,000 आर नॉट रिकॉर्डेड but is including in closing stock means these goods are including in closing stock but not recorded to purchase. Purchase पे tick mark and creditors पे tick marks. Receivable commission ₹2,000. Receivable commission is not given in trial balance of credit side. And outstanding office expense is given trial balance debit side tick mark. Investment पे tick mark. It adjusted against general reserve पे tick marks. Loan of 600 was given to the employee but debited to salary account, तो सैलरी पे टिक मार्क्स. ये सारे एडजस्टमेंट है. एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन 3:7. प्रिपेयर एनुअल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स. नाउ इसके लिए कौन से अकाउंट्स बनाएंगे हम? सोचो जरा, कौन से बनाएंगे? यस, चल कौन से देख लेते हैं. कौन से टेबल बनते हैं? पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स. क्लियर दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? ट्रेडिंग अकाउंट्स. सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. थर्ड जो टेबल प्रिपेयर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बिकॉज पार्टनर्स करंट अकाउंट इज गिवन. एंड लास्ट प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ गंगा एंड जमुना. क्लियर? टेबल तो हमने देख लिए. नाउ वन बाय वन ट्रायल बैलेंस जो है वो सारी एंट्री हम सॉर्ट आउट करते हैं. कहाँ पे जाएगी वो? तो पहले है ड्राइंग्स. गंगा 12,000 एंड जमुना 12,000. तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट्स. पार्टनर्स करंट अकाउंट्स डेट 31st 3 2017 to drawings account 12,000. Purchase trading account debit side. Purchase trading account debit side. Inner column 1,04,000. Purchase trading account debit side. Inner column. Goods return. Now goods return debit side is given, that is sales return. So trading account credit side we write down buy sales minus sales return amount 1,600. Clear? Now next stock date is given 1/4/2016. That is opening stock. Opening stock trading account debit side write down to opening stock 16,000. Salary profit and loss account debit side to salary inner column 18,000. Office expense profit and loss account debit side inner column 9,000. Carriage inward is purchase related expense, therefore trading account debit side carriage inward 3,000. Carriage outward is sales related expense, therefore debited to profit and loss account. So carriage outward profit and loss account debit side 4,500. Bad debts profit and loss account debit side we write down format of bad debt T plus bad debt A plus bad debt reserve A minus bad debt reserve T.
टी मीन्स ट्रायल बैलेंस, ए मीन्स एडजस्टमेंट, जैसे हमने आगे डिस्कशन किया हुआ है ऐसे ही, ठीक। तो बेड डेप्ट टी इज गिवन, बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस इज गिवन 1400. नाउ debtors, balance sheet asset side, inner column 67,000, bills receivable, asset side outer column 2,000, cash on hand, asset side 3,400, bank balance is also given, bank balance 5,600, investment, building 24,000, machinery 30,000 and investment 14,000. तीनों तीन इनर कॉलम में तीनों तीन एसेट थी, तो एक साथ हमने ले ली बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स, इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट है तीनों पे। नाउ देखो डेबिट साइड की सारी एंट्री हमने पोस्टिंग कर दी है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, या तो बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर? नाउ कैपिटल्स, कैपिटल्स लाइबिलिटी साइड गंगा 30,000, जमुना 36,000, आउटर कॉलम 66,000। ना देखो कैपिटल हमने डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड लिख दी, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, तो कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड हम ले लेंगे। नाउ करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट दिया है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट्स में क्रेडिट साइड, डेट लिखेंगे 1/4/2016, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3,000 एंड 2,400, दोनों का क्रेडिट बैलेंस था, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। नाउ सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स 1,84,000 minus sales return 1,600, outer column 1,82,400. Now purchase return 1,200, तो इनर कॉलम 1,02,800, इनर कॉलम में रखेंगे बिकॉज अभी एडजस्टमेंट बाकी है, अंडर रिकॉर्डेड परचेज। बैड डेब रिजर्व, बैड डेब रिजर्व टी 6,000, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, liability side outer column 13,500, creditors, liability side inner column 36,000, bills payable, liability side outer column 1,800, loan borrowed, liability side outer column 4,000, and general reserve, liability side inner column 9,600, because इस पे एडजस्टमेंट है। Now adjustments. First adjustment is value of closing stock. It 28,600, but market value is 20% goods. It 10% more. अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बट कॉस्ट प्राइस होगी 28,600। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स विच एवरेज लेस वो हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 28,600, बिकॉज अगर 28,600 उसका 20% गुड्स, उसमें 10% मोर है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, तो वी कंसिडर द cost price 28,600. The first adjustment, closing stock, first entry, trading account credit side, closing stock 28,600, and second entry, balance sheet liability side 28,600. Second adjustment, 5% interest on capitals and annual बोनस, दोनों साथ में हम कर देते हैं। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, तो देखो कैपिटल्स जो दी है 30,000 है पहली, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 5% 1,500, और दूसरे की है 36,000, तो उस पर 5% 1,800। ना बोनस, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बोनस 2,000 2,000, दोनों को 2,000 2,000। ना देखो
interest on capitals, income for partner but expense for firm. Same way bonus is income for partner but expense for firm. Therefore P&L appropriation account debit side, write down to interest on capital Ganga and Jamna, outer column 3300. Same way bonus to partners Ganga 2000, Jamna 2000, outer column 4000. Clear? Now next, bad debt reserve 3000 and 5% discount reserve on daters. Now देखो यहाँ पे bad debt reserve minus from daters, bad debt reserve A 3000, inner column 64,000. Now DRD A 5% on daters, so 64,000 into 5%, that is 3200. Now outer column 60,800. now देखो bad debt reserve A बैड डेप के फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्काउंट रिजर्व ए सेपरेट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो बैड डेप ए इज नॉट गिवन, तो बैड डेप ए डैश बैड डेप रिजर्व ए 3000. नाउ टोटल दिस 4400 माइनस 6000, तो नेगेटिव आया 1600 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे आउटर कॉलम में। नेगेटिव है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, यहाँ से हम उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे बाय बैड डेट रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम डेबिट साइड 1600। जो क्रेडिट माइंड नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स बैड डेट रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस नहीं है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो उसको आउटर कॉलम में लेते, बट माइनस है उसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो हमने क्रेडिट से ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। नाउ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 3200। क्लियर? उसका फॉर्मेट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, डीआरडी टी भी नहीं, टी नहीं दिया, तो हमने डायरेक्टली डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एक सिंगल था तो हमने उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट का 3200। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी। चलो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 24,000, उसका 10% 2400, आउटर कॉलम 21,600, एंड मशीन पे 30,000 इंटू 10% 3000, आउटर कॉलम 27,000। नाउ दोनों डेप्रिसिएशन 2,400 एंड 3000, P&L debit side, yes. Write down depreciation on machine 3000 and depreciation on building 2,400. Clear? Sure. Now next, purchase rupees 4,000 is not recorded but including in closing stock. हमने आगे बोला वैसे ही goods including in stock but not recorded to purchase. Purchase में प्लस करेंगे and creditors में प्लस। Unrecorded purchase 4,000, outer column 1,06,800 एंड क्रेडिटर्स में 36,000 यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस अनरिकॉर्डेड 4,000, आउटर कॉलम 40,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, रिसीवेबल कमीशन रुपीज 2,000, कमीशन इज रिसीवेबल 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस रुपीज 200। ना देखो रिसीवेबल कमीशन इज आवर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन या बाय रिसीवेबल कमीशंस। कमीशन इज नॉट गिवन तो हम उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,000 एंड ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे है 200 आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200, आउटर कॉलम 9,200। now देखो आउटस्टैंडिंग कमीशंस मींस कमीशन इज रिसीवेबल अमाउंट इज अवर एसेट्स एंड पेएबल अमाउंट इज अवर लायबिलिटी। तो 200 लायबिलिटी साइड जाएगा और 2,000 एसेट साइड जाएगा। चल देखते हैं। नाउ आउटस्टैंडिंग कमीशन या रिसीवेबल कमीशन रुपीज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200। क्लियर? ये पेएबल अमाउंट है, ये रिसीवेबल अमाउंट है। नाउ नेक्स्ट adjustment number 7, the value of investment is determined rupees 12,000 and adjustment of difference is to be transferred to general reserve। जो भी डिफरेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो लॉस या प्रॉफिट जो भी हो वो अगेंस्ट एडजस्ट करना है आपको जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में। ठीक, देखते हैं। चलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी थी 12,000, यहाँ पे 14,000, तो हमें 2,000 राइट ऑफ करने पड़ेंगे।
तो 2000 हमने राइट ऑफ कर दिए, तो आउटर कॉलम 12,000, उसकी वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दी 12,000। क्लियर। ना 2000 जो लॉस था, यहाँ पे हमें क्लियरली बोला हुआ है कि सेट ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाना, तो जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में ही हम उसको राइट ऑफ करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ 2000। नाउ रिमेनिंग जनरल रिजर्व रहेगा हमारा 7600। जो 2000 इन्वेस्टमेंट का लॉस था, वो हमने जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर दिया। क्लियर। चल नाउ नेक्स्ट, loan of rupees 600 given to an employee but debited to salary account. Actually, 600 loan given to employee, but we are considered के salary paid. So not, it is a receivable amount. Therefore, minus from salary, salary में से minus करें loan to employees 600. Outer column हो जाएगा 17,400 and second entry आएगी बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज इज द रिसीवेबल अमाउंट, लोन एंड एडवांसेस है ये, लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉई, आउटर कॉलम 600। क्लियर। हमारे लिए एसेट चाहिए। सारे एडजस्टमेंट्स ओवर। नाउ यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं। नहीं, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ टोटलिंग, टोटल चेक करते हैं। आप देखते हैं, पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स, वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या मिलता है, चेक करते हैं। इस साइड का टोटल हम कर रहे हैं तो आ रहा है 2,11,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,50,860। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम दोनों साइड वो टोटल लिखेंगे। 2,11,000 से इस साइड भी 2,11,000। नाउ वी टेक द डिफरेंस, 2,11,000 माइनस 1,50,860, तो हमारा डिफरेंस आएगा 85,200। ना 85,200 जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड डिफरेंस है, वो बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज नॉन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 85,200 और उसके सामने लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 85,200, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर। नाउ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट 85,200। नाउ अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, तो इस साइड का टोटल चेक करते हैं 88,800, इस साइड का 39,700, या इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो देखो क्रेडिट साइड 88,800। नाउ सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 88,800। नाउ अगेंस्ट वी फाइंड आउट द डिफरेंस, एंड डिफरेंस आएगा डेबिट साइड, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा, एंड प्रॉफिट सॉरी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो है ग्रॉस नेट प्रॉफिट 88,800। 88,800 माइनस 39,700, दैट इज 49,100, वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 49,100। क्लियर। नाउ ये जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। डिफरेंस डेबिट साइड है बट बैलेंस क्रेडिट। ना वो आएगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 49,100। टोटल अगर आप देख रहे हो तो इस साइड का ज़्यादा है, फिर भी चेक कर लेते 49,100, इस साइड 7,300, इस साइड ज़्यादा है 49,100। सेम यहाँ पे लिखेंगे हम 49,100। ना वी फाइंड आउट द डिफरेंस। अगर डिफरेंस यहाँ पे भी डिफरेंस किस साइड दिख रहा है आपको, डेबिट साइड, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो क्रेडिट बैलेंस है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 49,100 माइनस 7,300 इज 41,800। क्लियर। तो यहाँ पे हम वो प्रॉफिट लिखेंगे 41,800। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमने देखा था 3:7 था। तो ये 41,800 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा, रेशियो के हिसाब से उसका जो रेशियो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे गंगा को आएगा 41,800 इंटू 3/10। मैंने अभी बोला आपको 3:7 रेशियो है, तो 3/10 दैट्स 12,540। और जमुना को आएगा 41,800 इंटू 7/10 दैट्स 29,260। क्लियर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ यहाँ पे हम ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट, यहाँ पे करंट है तो करंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट में गया, पार्टनर्स करंट में क्रेडिट साइड डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,540 एंड 29,260। ना इसका टोटल करते हैं हम। इसका टोटल आया 19,040 और इसका टोटल आया ये टोटल हमने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा ना। इसका टोटल 35,460। तो इस सेट का 35,460 सेम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 12,000 सेम अमाउंट है, अलग ही है। तो 35,460। ना इस सेट का टोटल करने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 12,000 ना वी टेक द डिफरेंस। फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे गंगा का बैलेंस। तो 31st 3 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। गंगा का 19,040 माइनस 12,000, 19,040 minus 12,000, 7040। क्लियर। तो 7040 यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट उसके दूसरे का 35,460 माइनस 12,000 दैट इज 23,460 जमुना का बैलेंस। ये दोनों करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से हम ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड करंट अकाउंट्स ऑफ गंगा 7040 एंड जमुना 23,460। तो टोटल हो गया आपका 30,500 आउटर कॉलम। नाउ दोनों साइड्स, इस साइड का टोटल 1,63,600, इस साइड का टोटल भी हो गया 1,63,600। सारे एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट सारी टैली करके हमने यहाँ पे बैलेंस शीट भी टैली हो गई 1,63,600। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो बार बार देखते रहना और रिवाइज करते रहना, और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको स्कोर करते रहना। थैंक यू।